You know, Arora ji as CEO. If you actually look back, who does Mr. Arora work for? He actually works for that reporter who gets the story. Who do you work for? You actually Absolutely. market a story if it's worth being marketed, Very right? So well you said. work for Yeah. the reporter. True. Dinesh ji, despite his stingy behavior, works for the reporter. 5,000 रुपए नहीं 4,000 रुपए लेके चला जा तू, हाँ Pun ठीक है intended, huh? ठीक है. So everybody, we see Ruchira works for the reporter because she Absolutely. ensures that there's a good cameraman who works, there's a good VT editor who's there. Yeah. The people in the back end, the production team, the desk, the assignment heads, everybody works for a reporter. So I realized that very early that it's very important to respect reporters. It's very important to have the right reporters, you know. And once you start doing that, then I don't know. I don't know if it's a popularity thing. I don't. I'm not in the popularity contest really, but I've realized that if you're a team person, if nothing else, people will like you. Maybe not. Oh, They'll like you. They'll respect you. It's not about your popularity, but it's more about respecting the other person. And I think the leader, whether it's an editor or whether it's an intern, and trust me, the most junior employees have the best ideas. You know, and we need to encourage that as an organization. That the junior people should be given an opportunity to give ideas. People sitting on the sofas here, we have honestly we are starved of ideas. We really don't know what reality is. Maybe some people in this sitting here may disagree, but that is my opinion. That you know the juniors have the best ideas. We need to respect them, wonderful. and once you respect them, the team will automatically grow because they'll feel that they are wanted. Really. Right. Well, fantastic. So, well, Sameer, my next question to you is you've been in ZMCL for years now, if I'm not mistaken, close to 2 decades. So, tell us about your journey in ZMCL. You know, I think ZMCL is one place which really allows you to grow. You know, there have obviously in the last 17 years that I've been here, there must have been 5 occasions where I thought it's time to move on, to better things, try something better. You know, but then you realize that you know each time you think of that, there's a new opportunity which comes your way, and it's all about leading from the front. You know, when you have a team which works with you, when you respect the team as much as the team respects you, and when you know that the team is as important to you as you are as important to the team, you'll realize that you know you'll get a lot of independence to work. Whatever you think of will get implemented. You'll respect others' ideas, and as you keep growing, I think ZMCL is one a class apart of a case where uh, your ideas are allowed to flourish. People are allowed to do things that they want to do, as long as obviously it's in the right direction. Once you do that, you really it's not about as long as you're doing something new every day or new every month or new every 6 months, you really don't think of leaving, you know, because you're always Right. learning something new. And that learning process, as long as it continues, people get bored when they stop learning. So as long as that learning continues, you strive on, you keep working. And I'm sure there are a lot of people in this room who've completed 10 plus years Yeah. as well out here. So I think it's that learning, that new role which they keep getting, the new areas they keep on working with, which is the defining moment for them. Wonderful. Thank you, Sameer. It was indeed a kick ass Pleasure. conversation. Pleasure. Well, indeed, it was. Thank you, Sameer. Thank you, Pooja. Yeah. Well, now we move on to the man who holds strong to his convictions, remains humble in his speech, and lets his actions tell the story. Yes, you guessed it right. It's time to hear from our very own Vasindra ji. Over to you, Pooja. Sure, thank you. So चलिए अब रुक करते हैं सियासत की तरफ जहां हींग है तड़का है लंदन है बीजिंग है न्यूज़ है तो व्यूज भी हैं तो वासिंद्र जी कहिए क्या खबर है की खबर आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन रहे एसएल ग्रुप के अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं हरियाणा से। आज की लेटेस्ट खबर यही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे राज्यसभा का। इंडिपेंडेंट चैनल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। So Vasindra ji, tell us any interesting situation where you were completely bowled over by any politician or a bureaucrat while you interviewed in your tenure. एक्चुअली कोई politician जिससे मतलब completely उसने आपको bold कर दिया हो आपने किसी को इंटरव्यू किया हो नहीं, ऐसा तो बहुत कम हुआ है क्योंकि नॉर्मली वासिंद्र जी या क्योंकि मेरा जो पूरा काम का तरीका रहा वो शुरू से रहा कि जैसे कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया तभी बोला कि मेरी लाइक डिसलाइक बहुत हार्ड है और कई ऐसे मौके आए जब इन हाउस भी हम लोग बात करते हैं, चाहे आरके जी हों या चेयरमैन हों, सबके सामने तो मेरी जो अपनी ओपिनियन रहती है हम उसी पे स्टिक करते हैं, चाहे उसका फ़ायदा हो या नुकसान हो।
वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में भी यही रहा, जर्नलिस्टिक कैरियर में भी यही रहा। और चूँकि मेरी ग्रूमिंग प्रिंट मीडिया से हुई थी, 12-15 साल प्रिंट में रहने के बाद हम आए थे टेलीविज़न में, तो अभी वो आदत छूटी नहीं है कि नहीं, जिस पर अड़ गए तो अड़ गए। फिर कुछ हम शेयर जो कीजिए अपनी स्टोरीज, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज सबके साथ। एक्चुअली यूपी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट रहा हमेशा से, और आज़ादी के पहले भी, ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा रहता है राजनीतिक उसमें घटनाक्रम में। देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है, और मोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक जितने हुए सब उत्तर प्रदेश से हुए। तो और ज़्यादातर पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज भी, वह भी सब उत्तर प्रदेश से हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में रहने के नाते, वहाँ से पढ़ाई और वहाँ से पत्रकारिता करने के नाते सबसे ज़्यादा जो काम रहा पॉलिटिकल फील्ड में रहा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर जो समझ ले, वो देश की राजनीति समझ लेता है। तो तो Sudhir इसलिए said obviously. हाँ, वो ऑफिस कुछ की भी भी समझ सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश समझ ले, वो देश समझ लेता है। बिल्कुल। और एक जैसे हम लोगों का कहा जाता है कि जो अपना घर ठीक से मैनेज कर लेता है, वो देश भी ठीक से मैनेज कर लेता है। बिल्कुल, बहुत सही। तो मैं, चूंकि पॉलिटिकल बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की नज़र में नरेंद्र मोदी बहुत कामयाब मैनेजर हैं, बहुत कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना घर नहीं मैनेज कर पाए तो देश क्या मैनेज कर पाएंगे। और जो भी डिसास्टर और दिख रहा है कंट्री में इस समय, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, वो ड्यू टू इसलिए है कि उनको वह एक्सपीरियंस नहीं है। जो घर ठीक से मैनेज कर ले, अपने घर वाली को ठीक से मैनेज कर ले, वो समाज और देश सबको मैनेज कर सकता है, और वो ऑफिस भी मैनेज कर सकता है। हाँ, तो आई नेवर बॉदर अबाउट। Wonderful. Wonderful. It's so awe-inspiring to hear such incredible stories. Thank you, Vasindraji. Thank you so much. Thank you, Pooja. Thank you so much, Vasindraji. Well, now it is the time to focus on the man who doesn't crumble down, to the man whose credibility and determination to succeed is strong enough. Yes, ladies and gentlemen, you got it right. We are indeed talking about Dinesh. Well, it is a little sad, but he could not be with us today for some urgent work. But we did not forget to capture Pooja's tete-a-tete with Dinesh. So let's all have a look at the AV. AV, please. That's a warm welcome to you from our side, from Team Marketing, yeah? Shubhkamnaएं. Yeah. Thank you. A very warm welcome to you, Dinesh. Thanks, Pooja and team. So, Dinesh, आपने आज तक बहुत लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछे. So now it's my time to get direct with Dinesh. जी जी Why is that reporting में credibility बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी चैनल को नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचाने के लिए credibility का कितना महत्व है? Thanks, Pooja, and to all say members of your team, marketing team, and to all and everyone present over here. Credibility ये कहा जाए कि ना सिर्फ न्यूज़ चैनल के लिए, बल्कि जर्नलिस्ट, अगर जर्नलिस्ट क्रेडिबल है, तभी जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके साथ जुड़े लोग हैं, अगर हम जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की बात की जाए, पिछले 1 साल में हमने जनता का, ये कहा जाए कि भरोसा जीता है, विश्वास जीता है। और आज 1 साल बाद जी पंजाब हरियाणा हिमाचल क्रेडिबिलिटी के नाम पे अगर बात की जाए, तो लोग ये कहते हैं कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इस क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज़, सच्चाई की आवाज़ जो है पिछले 1 साल से बुलंद कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ नेता और ना सिर्फ एक पार्टी के, बल्कि ये कहा जाए कि सभी अक्रॉस पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या शिरोमणि अकाली दल भी हो, उनके नेता भी ये कहते हैं कि आपने जो खबरें दिखाई हैं पिछले 1 साल में, और जिस तरह से न्यूज़ चैनल को काम करना चाहिए, उसी तरह जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जो है अपना दायित्व निष्पक्षता के साथ कर रहा है। और ये कहा जाए कि अगर क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है,
आप एक रिपोर्टर से एक पत्रकार जो है ग्रो करता है, और मैंने रिपोर्टर से ग्रो किया, और रिपोर्टर से ये कहा जाए कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने हर क्षेत्र में रिपोर्टिंग में काम किया, मुझे मौका मिला, और चाहे वो राजनीतिक दल हो या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो की तरह काम करने का मौका मिला। उसमें पिछले ये कहा जाए कि 20 साल में मैंने क्रेडिबिलिटी बनाई, और क्रेडिबिलिटी जो है वो एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के लिए भी और न्यूज़ चैनल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी से जो है आपका ये कहा जाए कि लोगों का भरोसा, लोगों के का जो विश्वास है वो जीता जा सकता है। पूजा। Well, ladies and gentlemen, these were words indeed straight from the core of his heart. Well, we all know investigative journalism requires not only in-depth preparation, but also requires a heart made of steel. So, Dinesh, we would like to hear about your investigative journalism stories. पूजा, स्टोरीज़ तो बहुत हैं। I've done many investigative stories. I was head of investigative team also in Z News. That's 6-7 years I think back. So Commonwealth Games जो scam हुआ था, I was the one to do I started doing the investigative stories about the scam because I had the internal source over there who gave me the stories from inside. और वो कॉमनवेल्थ स्कैम जो है उस दौरान जी न्यूज़ ने काफ़ी अच्छा काम उसमें किया था, एंड माई स्टोरीज आई वॉज द वन हु स्टार्टेड, एंड देन देयर वाज अ RAW ऑफिसर रविंद्र कुमार who fled to US. That was also one of my best stories. And स्टोरीज़ बहुत है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ बहुत है, चाहे वो स्कैम्स की बात करें या फिर ये टेररिस्ट अटैक्स को लेकर बात करें. आई डिड MHA फॉर आई थिंक अराउंड 16 ईयर्स, और MHA में लोग ये कहते थे कि प्रिंट जो है सबसे अच्छा करता है, लेकिन प्रिंट ने हमको जी न्यूज़ को जब मैं गृह मंत्रालय करता रहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज करता रहा, तो उस दौरान प्रिंट हमको फॉलो करता था. और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड स्टोरीज़ मैंने बहुत की. एक बार मैंने स्टोरीज़ दाऊद के परिवार, दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड दाऊद गैंगस्टर जो है हु इज़ इन पाकिस्तान, उससे रिलेटेड स्टोरी की, और उसके जो पूरा परिवार जो है उससे संबंधित स्टोरी थी. उनकी ये कहा जाए कि शादी की तस्वीरें थे, पूरे परिवार इकट्ठा हुआ था कराची में. तो वो स्टोरी इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि पूरे परिवार की तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज़ ने, और सबसे पहले मैं ये कहा जाए कि हम लेके आए थे, दर्शकों को हमने दिखाई थी. और उसके बाद रात में 11 बजे मेरे दोस्त उस दौरान जी न्यूज़ में थे, केल्विन जोशुआ, और उसके बाद मुझे छोटा शकील का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप ये पिक्चर्स जो हैं ये हटा दीजिए, अगर आप ये पिक्चर्स नहीं हटाते तो इसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होंगे. तो हमने कहा कि आप दाऊद इब्राहिम, जिनको कि भाई कहा जाता है, उनकी तस्वीर दीजिए, हम पिक्चर्स हटाएंगे. उन्होंने पिक्चर दी नहीं, हमने तस्वीरें हटाई नहीं, और आज भी वो तस्वीरें जी न्यूज़ की जो वेबसाइट है उस पर अभी भी कहीं है. कुछ डर लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा, बिकॉज हम अपना काम कर रहे हैं, दैट्स इट. और अगर अपना काम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप करते रहें, और जैसा पहला सवाल आपका था क्रेडिबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप सही से काम कर रहे हो. और पत्रकार के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी छोटा सा भी आपकी तरफ कोई उंगली उठती है और आपकी क्रेडिबिलिटी की तरफ सवाल उठते हैं, तो वो विश्वसनीयता लोगों की ख़त्म हो जाती है. और यही विश्वास जो है लोगों के साथ हमने बनाए रखा है. ये कहा जाए कि चाहे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की बात की जाए, जी मीडिया की बात की जाए, हमने ये भरोसा जो है लोगों का जीता है. और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इसी तरह जो है लोगों के सामने सच के साथ, सच्चाई के साथ जो है खबरें लाते रहेंगे और रखते रहेंगे. थैंक यू.